लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections Lok Nirnay 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Renu Kataria and with me is my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम रोजाना आप तक ला रहे हैं चुनाव और लोकसभा चुनावों से जुड़े समाचार। साथ ही साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी हम जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके राज्यों में किस तरीके की चुनावी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, क्या राजनीतिक समीकरण वहां बन रहे हैं, और इन सभी बातों पर हम अपने विशेषज्ञ के साथ भी चर्चा करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद। केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। So let's begin with the headlines first. Campaigning concludes for fifth phase of Lok Sabha elections. Polling to take place on Monday. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addresses election rallies in Sonipat and Ambala in Haryana, criticizes the Congress and Indy Alliance as a group of corrupt and scammers. Congress President Mallikarjun Kharge, in a press conference of the India bloc in Mumbai, accuses Prime Minister Narendra Modi of inciting people and dividing society through election speeches. 1,409 voters cast home ballots in Delhi on the second day of home voting drive for voters above 85 years and persons with disabilities. लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार समाप्त। सोमवार को मतदान। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत और अंबाला में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को भ्रष्ट और घोटालेबाजों का समूह बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान अभियान के दूसरे दिन दिल्ली में 1409 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। Prime Minister and senior BJP leader today addressed a rally at Sonipat, Haryana. During his speech, Mr. Modi criticized the Congress and Indy Alliance, alleging that they are a group of corrupt and scammers. Highlighting the initiatives taken by the BJP government during its tenure, he said, the BJP government removed Article 370 from Jammu and Kashmir. He said India is working on a plan to host the 2036 Olympics in India. He said in the coming years, youth of Haryana and Sonipat will win the gold in the first Olympic to be hosted in the country. Earlier, while addressing an election rally at Ambala in favor of BJP candidates, he said that Pakistan has been troubling India since the last 70 years and had bombs in its hands, now has a begging bowl in hands. The enemies shiver like this when there is a Dhakar government. He said that weak government could not change the situation in Jammu and Kashmir. He further said that in the Congress rule, brave mothers and sisters of Haryana remained worried day and night. But now, in the last 10 years, the situation has changed. Only 17 days are left to go for counting of votes on June 4th. Congress and Indy Alliance will be defeated, he added. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और समाज को बांटने का आरोप लगाया है। मुंबई में INDIA गठबंधन के संवाददाता सम्मेलन में श्री खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार विश्वासघात और षड्यंत्र के आधार पर बनी थी। इसी संवाददाता सम्मेलन में एनसीपी एसपी गुट के प्रमुख
शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान से इंडी गठबंधन के जुड़ने जैसे झूठे बयान दे रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनबीटी को क्षमा करें, कृपया इसको दोबारा सुन लें। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनडीए को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं और उसके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। A total of 1,409 voters cast home ballots in Delhi on the second day of home voting drive for elderly voters and persons with disabilities. A total of 5,406 voters across Delhi have filled out Form 12D to avail the home voting facility in the 2024 Lok Sabha elections. The Office of the Chief Electoral Officer of Delhi announced that West Delhi constituency reported the highest number of home votes with 348 voters participating. Among them, 299 were elderly individuals. With the completion of the second day, a total of 2,956 voters have exercised their right to vote from home. Our correspondent reports that the home voting facility has been designed to accommodate voters aged 85 and above, as well as persons with disabilities. The drive started on 16th May and will be available till 24th May. Delhi will go to polls on May 25th. जी, और हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञ से। देसाई जी, अगर हम देखें तो 5वें चरण का आज प्रचार समाप्त हो गया और 49 सीटें लोकसभा की दांव पर हैं और इसके बाद 2 और चरण बचे हैं। लगभग अब लोकसभा चुनाव अपने संपन्नता की ओर ही बढ़ रहा है, समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी तक जो हमने देखा कि चुनाव प्रचार भी हुआ, चुनाव प्रचार के दौरान तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगे। इस पूरे जो 18वीं लोकसभा का जो पूरा हम चुनाव प्रचार देखते आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में आपको क्या लगा कि राजनेताओं ने या राजनीतिक दलों ने अपनी मर्यादा से बाहर जाकर भी कुछ बोला, या आप पूरे प्रचार को आरोप प्रत्यारोप की दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं? देखिए विशाल जी, ये तो सब जानते हैं कि चुनाव के अखाड़े में इस तरह की बातें आम होती है, लेकिन जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं, सब उम्मीद करते हैं, खासकर राजनेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके हम लोग सब समझते हैं कि उनको एक रोल मॉडल की तरह लोग देखना चाहते हैं। और क्योंकि जो स्तर ऊपर उठता है तो फिर वो नीचे तक जाता है, तो एक तो वो ये सब इसका ख्याल रखते हैं। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके तहत भी लोग इसको उस नजरिए से भी आकलन करते हैं जी। तो अगर जी हाँ, आप जाने रखिए। तो सवाल जो आप कह रहे हैं कि अगर आप देखिए शुरुआत में जो रुझान था, जो शुरुआत की बात हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था, जिस मजबूती के साथ बातें रखे, और रखना भी है कि 10 साल उनकी सरकार चली है तो उनको अपने बातों को रखना है और लोग। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से कोशिश हो रही कि सवाल करे कि भाई जो आपने वायदे किए थे पूरे हुए नहीं हुए, दूसरा ये है कि कई और मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उसके और ध्यान आकर्षित करना विपक्ष का काम है, वो करती रहती है। तो उसमें देखा जाए कि किस तरह से नैरेटिव क्या बदला है या नहीं बदला है। तो जो अगर आप पूरे इसको देखें स्विंग को जिस तरह से, तो वो चीज एक इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगता है जी। प्रचार की केवी प्रसाद जी हम बात कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रचार के दौरान 5 चरणों का भी आज प्रचार, 5वें चरण का प्रचार समाप्त हो गया। पूरे प्रचार के दौरान जो निर्वाचन आयोग की जो भूमिका रही, निर्वाचन आयोग ने किस हद तक ये जो अमर्यादित टिप्पणियां होती हैं चुनाव प्रचार के दौरान, उसको इस बार ऐसा लगा आपको कि निर्वाचन आयोग बहुत हद तक सफल रहा है? जी, निर्वाचन आयोग ने खुद पिछले हफ्ते एक बयान जारी किया जिसमें बोला कि करीब 99% जितने भी उनके सामने इस तरह के आचरण उल्लंघन के जो समस्याएं उठी है उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है, और एक आध मुद्दे को छोड़ के उन्होंने तकरीबन सब पे अपनी बात रखी है। लोग चाहेंगे, क्योंकि एक मापदंड जो चुनाव आयोग तय करता है, लोग देखते हैं इसको कि भाई चुनाव आयोग सख्ती करे, और ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही इसको आगे ले जाती है, क्योंकि लोगों का विश्वास, जनमत का विश्वास है वो चुनाव आयोग के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। Yes, now Vishal, we are connected with our Kolkata RNU, our regional correspondent Kalyan Laha. Hello Kalyan, can you tell us about the polling preparedness in the state, and also can you let us know who are the key candidates in the 5th phase there?
Look, there are 7 parliamentary seats which will be under poll on 20th May in West Bengal, and Commission has taken all necessary measures for a free and fair election. And there will be 613 companies of central forces and 25,000 plus state forces on that day for polling duty. And Commission has reserved flying squad and adequate number who will be fighting against TMC's Vishwajit Das, and another key candidate is Barakpur's Arjun Singh of BJP, who will fight against TMC's Partha Bhaumik. Partha Bhaumik is the cabinet minister of Mamata Banerjee headed Council of Ministers, and TMC's another heavyweight candidate is Haura's Prasun Banerjee, who will fight against BJP's Dr. Ratin Chakraborty. And in Srirampur seat, TMC's Kalyan Banerjee will fight against BJP's Kabir Shankar Bose. Both are lawyers. And in Hooghly seat, there are Loket Chatterjee of BJP, who will be fighting against Rachna Banerjee of TMC, and both are associated with Bengali film industry. And Rachna Banerjee is a very much popular in Bengal. Thank you, Kalyan. And now staying with the state of West Bengal, we have our constituency profile on Srirampur by Kalyan Laha. Srirampur Lok Sabha constituency consists of 7 assembly segments, and it will go to poll on 20th May under the 5th phase of General Election 24. The assembly segments are Jagatballabhpur, Domjur, Uttarpara, Srirampur, Chonditola, Jangipara, Chapdani. 5 assembly seats of this constituency come under Hooghly district and 2 assembly seats come under Howrah district. There are more than 19 lakhs voters in Srirampur constituency, of which 49.50% is female voters. 11 candidates, including 4 independents, are fighting in Srirampur Lok Sabha seat. The sitting MP of this Lok Sabha seat, Sri Kalyan Banerjee, is from Trinamool Congress. Trinamool Congress has fielded Kalyan Banerjee again in this seat. BJP's candidate Kabir Shankar Bose is a young barrister at law, and he is practicing at Supreme Court of India. Congress supported CPIM candidate is Deepshita Dhar. Deepshita Dhar is a Students' Federation of India SFI leader and pursuing PhD from JNU. So, Prasad sir, here there's a question here. Srirampur is one of the few Lok Sabha seats in the country where the BJP has never been able to secure a win. And now that India Alliance and CPIM have their candidate Deepshita Dhar as a representation of the youth they have fielded from there, what do you think will be the electorate's mindset when they see that the left and the Congress alliance are now together? What kind of an impact will it make on the electorate? Well, this is not the first time that the Congress and left are together, but the fact remains they are trying their best to, now get back some of the seats. And the left has been decimated in Bengal after having had almost a 3-decade an uninterrupted run from Jyoti Basu's time in 77 onwards. Yes. That got uprooted, and Trinamool was primarily responsible. Now, the primary challenge to Trinamool comes from the Bharatiya Janata Party. And last time they won 18 Lok Sabha seats. That was a big victory. And today the BJP is trying to challenge that position and wants to improve that. Yes. But the fact remains, there are reports that are coming out from Bengal. One reads reports saying that in certain segments, I'm not even saying constituency, certain segments, there is an attempt to see if the left can, improve its vote share. Because last time in the assembly elections, the left got again just didn't make anything, no headway. So the thing is, it essentially looks to be a two level BJP versus the Trinamool, but the Congress and the left together are trying to claw back. और हम अब चलेंगे अपने लखनऊ संवाददाता के पास। सुशील चंद तिवारी जी वहां पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशील जी, अब 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है 20 तारीख को, और क्या मौसम की अगर हम बात करें तो गर्मी निश्चित तौर पर बढ़ी हुई है, और भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान की क्या खास तैयारियां की गई हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से? देखिए विशाल, मतदान को लेकर के निर्वाचन आयोग पिछले 4 चरणों में जिस तरीके से गर्मी की शुरुआत से ही मतदान शुरू हुआ, तो उसके बाद से लगातार इस बात के प्रयास कर रहा है कि गर्मी की वजह से लोगों के उत्साह पर कोई फर्क न पड़े, वोट डालने आया हुआ कोई व्यक्ति बीमार न हो, उसको कोई समस्या न हो। तो वहां पर जो भी मतदान केंद्र है, सब जगह इस प्रकार के इंतजाम
शेड के इंतजाम किए जा रहे हैं, छाया रहे ताकि वहां पर लोग लाइनों में जो लगे उनके ऊपर भी छाया रहे, सीधी धूप न पड़े। पानी के इंतजाम किए जा रहे थे लगभग सब जगहों पर। लेकिन लखनऊ की आपको एक खास बात बताएं कि लखनऊ में भी 5वें चरण में मतदान होना है और जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से जो अपार्टमेंट है, यहाँ पर बहुत सारे, लखनऊ आप जानते हैं शहरी क्षेत्र है, बहुत सारे अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट के आसपास जो भी पोलिंग बूथ बने हैं सभी अपार्टमेंट में उन्होंने मट्ठे, छाछ और जो पेयजल होते हैं, आम का पना, इन सब के विशेष इंतजाम किए हैं चुनाव आयोग के साथ मिल करके। तो एक नई पहल है जो कि हमने लखनऊ में इस बार देखने को मिलेगी। परसों जब मतदान होगा तो एक नई अनूठी चीज शुरू की गई है। चुनाव आयोग अपनी ओर से लगातार लोगों को इस बात के लिए उत्साहित कर रहा है कि आप गर्मी से परेशान न हो, आपके लिए सारा इंतजाम रहेगा। तो विभिन्न तरीके के जो पानी से लेकर के जो पेयजल है उन सब का इंतजाम किया जा रहा है और एलडीए के सहयोग से, जो कि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके अथॉरिटी है, उसके साथ मिल करके ये एक नई पहल भी की गई है सारे अपार्टमेंट के आसपास, क्योंकि बड़ी संख्या में वोटर वहां पर मौजूद रहेंगे। जी विशाल। Thank you, Sushil. And now staying with Uttar Pradesh, moving from Lucknow to Allahabad, let us have the constituency profile of Allahabad by Sushil Chandra Tiwari. Along with political leaders like Lal Bahadur Shastri, VP Singh, Murli Manohar Joshi, Janeshwar Mishra, actor Amitabh Bachchan has been MP from Allahabad Lok Sabha seat. Due to the changing mood of voters, this seat never proved to be a stronghold for any party. Despite this, Congress has won this seat maximum 7 times. BJP has been winning this seat for the last 2 elections. At present, Rita Bahuguna Joshi, who left Congress and joined BJP, is the MP from here. In the last 2019 Lok Sabha elections, Rita Bahuguna Joshi defeated Samajwadi Party's Rajendra Singh Patel by more than 1,84,000 votes. Yogesh Shukla of Congress stood third in this election. This time, the contest on Allahabad seat is between 2 political heirs. BJP has fielded Neeraj Tripathi, son of former governor and 3-time speaker of UP Assembly, Pandit Keshrinath Tripathi. From the Indi Alliance, Congress has fielded Ujjwal Raman, son of 2-time MP Kunwar Revati Raman Singh, from this seat. Ramesh Patel has been made the candidate from BSP. There are a total of 5 assembly seats in Allahabad parliamentary constituency. These include Meja, Karchana, Allahabad South, Bara and Kurau. More than 18 lakh voters will decide the electoral fate of 14 candidates on May 25th in this parliamentary seat. Thank you, Sushil. So, Prasad sir, we just heard Sushil Chandra Tiwari say that the Allahabad seat, this is a fight between 2 political legacies for the prestigious seat on 20th May. And we have seen that Uttar Pradesh is a key state for political parties, and especially Allahabad being a political powerhouse for its significant influence in Indian politics. We have seen that through the line. And Congress winning maximum number of times over here. What do you, or what is your take on the electorate's mindset this time? How do you analyze that? Well, in the historical context, you're right. Allahabad had a central role in the India's freedom struggle. The leaders came from Allahabad, so it was a epicenter of the Indian freedom struggle. Yes. So that tradition and legacy continues in a way, if you look. And it's very right. UP with 80 seats is central to national politics and Indian Parliament, because it's always said the Prime Minister is from UP. From UP. Because the sheer number of seats that the state elects. What happens, what we have seen, but the landscape has changed considerably in the last 3 decades, and the Congress has been almost negligibly present, though it is said to be having a village, in every village a Congress party office, but the office barely seems to be functional. Yes. And it doesn't show up. So essentially the BJP, of course, is in a primary position, is in a pole position for a long time, and then you have other challenges. The SP is trying to again recoup and regain. Especially, it's interesting, this is the first election post Mulayam Singh. So it's Yes. going to show up as if the next generation of Samajwadi Party leadership under Akhilesh Yadav is able to move forward. जी, उत्तर प्रदेश के हम केवी प्रसाद जी छठे चरण की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो ये 14 सीटें हैं, मिशन 80 भाजपा जो लक्ष्य लेके चल रही है वहां पर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें साबित होने वाली हैं। 2019 के प्रदर्शन को हम देखें तो भाजपा 9 सीटों पर विजय रही थी, बसपा 4 और सपा 1 पर।
क्या आपको लगता है इस बार चुनावी तस्वीर भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? कोशिश तो उनकी पूरी है। देखिए, इसमें अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में जो एक शुरुआत में परेशानी आई थी कि जो कुछ एक समुदाय विशेष जो उनसे परेशान करके कुछ खबरें छपती आई, लेकिन इस इलाके में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपने गिनवाए हैं 14 में, इसमें उस समुदाय का काफी वर्चस्व है और काफी सारे सीट टिकट्स उन समुदाय के लिए तरफ दिए गए भारतीय जनता पार्टी को। ये जो समस्या थी उसको एक तरह से निदान करने की तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। और अगर आप देखें, यहाँ पे करीब 6 से 7 सिटिंग सांसदों को टिकट दिया है। एक के लड़के को दिया जिसकी समस्या को लेकर काफी जी, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। और ये एक ऐसा, जैसे आपने कहा कि गढ़ है, उस गढ़ में कोशिश करेंगे अपना किला बनाए रखने के लिए। जी। और अब रुक करते हैं पटना का। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय वहां पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, अब छठे चरण की प्रचार की हम आपसे जानना चाहेंगे बारे में कि क्या स्थिति वहां पर, प्रचार कैसा चल रहा है छठे चरण के लिए, और कितनी सीटें हैं छठे चरण में बिहार में, और कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में इस बार हैं? जी, अगर हम छठे चरण की बात करें तो 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जो है छठे चरण में मतदान होना है। और जो दोनों गठबंधन है, एनडीए और इंडिया अलायंस, उसके बड़े जो प्रचारक हैं पूरी ताकत झोंके हुए हैं। कल भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र में कल जो है चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री भी 21 मई को पहुंच रहे हैं। इसी चरण के जो है पूर्वी चंपारण और सिवान संसदीय क्षेत्रों में जो है चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और अगर प्रमुख प्रत्याशियों की बात करें तो पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री जो है राधा मोहन सिंह इस चरण में पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। और वहां से महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी के राजेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जो काफी वरिष्ठ सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, वो पश्चिमी चंपारण क्षेत्र से जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो सिवान सीट की जो चर्चा बहुत हो रही है, ये जो राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद है दिवंगत शहाबुद्दीन की सीट है। यहाँ पर इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया है। वे निर्दलीय सिवान से चुनाव लड़ रही हैं। और राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ से जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं बिहार के अवध बिहारी चौधरी, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और इस सीट पर जो है इस बार जो है जदयू ने भी जो अपनी जो वर्तमान सांसद थी कविता सिंह, उनका टिकट उनको उनके स्थान पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। इसके अलावा और एक और इस छठे चरण की महत्वपूर्ण सीट है महाराजगंज, जहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे आकाश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी दिग्गजों का भाग्य का फैसला छठे चरण में होना है। शिवहर सीट भी इस संसदीय सीट की बहुत संसदीय जो ये है छठा चरण है, इसकी महत्वपूर्ण सीट है। तो हाल में ही राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर जदयू में शामिल होने वाली जो लवली आनंद, वो शिवहर से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जी धर्मेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम रुक करेंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट का लेखा जोखा बता रही हैं हमारी संवाददाता प्रार्थना। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर वैसे तो 27 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी के उज्जवल निकम और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ के बीच है। पूर्व में इस सीट पर अलग अलग पार्टियों का कब्जा रहा है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में यहां से भाजपा की पूनम महाजन ने कांग्रेस पार्टी की प्रिया दत्त को हराया था। 2024 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का है। भाजपा ने 2 बार की मौजूदा सांसद पूनम महाजन की जगह मराठा समुदाय से आने वाले प्रतिष्ठित सरकारी वकील उज्जवल निकम को टिकट दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पार्टी की मुंबई इकाई की प्रमुख और धारावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार की विधायक रही वर्षा गायकवाड़ को मैदान में उतारा है, जो कि राज्य में पार्टी का दलित चेहरा है। जी केवी प्रसाद जी, महाराष्ट्र की बात करें तो, और खासतौर पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट की बात करें तो इस बार उज्जवल निकम पर दांव लगाया है भाजपा ने, और सामने उनके
जो वर्षा गायकवाड़ हैं कांग्रेस की, ये भी बहुत जानी मानी प्रत्याशी हैं और 4 बार विधायक भी रह चुकी हैं। किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं आप? 2019 में हम अगर देखें तो 1,30,000 वोट से भाजपा जीती थी इस सीट पर। जी, 19 का तो मापदंड अलग होगा क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति अलग है और इस वक्त जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, और महाराष्ट्र में तो एक तरह से तिकोनी है मान के चलिए, क्योंकि शिवसेना में भी जो विघटन हुआ है, उधर दूसरी एनसीपी में भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, तो इससे जरूर कुछ ना कुछ बिखराव दिख रहा है। लेकिन जो चेहरे उतारे हैं, चूंकि एनसीपी, अगर कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है वो उनकी तरफ से वर्षा गायकवाड़, जिनके बारे में आपके संवाददाता ने हमें सब विस्तार से बताया ही है, उज्जवल निकम नया चेहरा है, लेकिन जाना माना चेहरा है, क्योंकि वो पूरे वहाँ पे टेररिज्म वाले जो केस थे मुंबई सरकार में, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो वकील थे और काफी कंक्लूसिवली उन्होंने आर्ग्यू किए केसेस को। तो एक वो है। पूनम महाजन, हम जानते हैं प्रमोद महाजन की बेटी सुपुत्री, वो रही 2 बारी सांसद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे सांसद बदले पूरे देश में, तो उनमें इनका भी एक नाम था। जी, और अब हमारे पास बुलंगीर सीट है उड़ीसा की, और प्रकाश दास इस लोकसभा सीट के चुनावी समीकरणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उड़ीसा के खूबसूरत शहरों में बलांगीर गिना जाता है। यह शहर अपने कई शानदार मंदिरों, इमारतों और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में बलांगीर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में जोरदार हलचल बनी हुई है। बलांगीर संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो कभी ये सीट कांग्रेस के पास रहती थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने पकड़ बनाई, फिर बीजेडी के खाते में ये सीट आ गई। बलांगीर लोकसभा सीट पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। बलांगीर संसदीय सीट के तहत 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ 2019 के विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर बीजेडी को जीत मिली तो 2 सीट पर कांग्रेस, जबकि 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने फिर से संगीता कुमारी सिंहदेव को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेडी ने कांग्रेस से आए हुए सुरेंद्र सिंह भोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभिनेता से नेता बने मनोज मिश्रा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसी महीने 20 तारीख को होने वाली मतदान में बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की आसार है। Prasad sir, talking about Balangir, the constituency's electorate has always shown a very active participation in shaping its parliamentary representation, reflecting the vibrant democratic ethos of the region. How do you think this will play out on 4th June? Well, I wish I know the electorate's mind, but if you look at the overall thing, I think Odisha again offers a very interesting component because allies have now become rivals. Yes. So that's the composition has changed. So that is going to reflect in the larger playoff scheme of things when people decide to cast their ballot through the electronic voting machines. True. And I think, Vishal, we are coming to closing now. So, KV Prasad sir, you have discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable input. We thank you so much. Thank you. श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।